हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा शार्प एंड स्मार्ट यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स का 9th क्लास। अभी पहला चैप्टर जो 9th क्लास के मैथमेटिक्स में है वो है आपका नंबर सिस्टम्स। जब नंबर सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो नंबर्स की अपनी एक फैमिली है, इसको समझना ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से हम अभी 9th क्लास की स्टार्टिंग में समझ लेंगे तो थ्रू आउट 9th क्लास एज वेल एज इन योर हायर स्टडीज़ ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स यू कम अक्रॉस। आज अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, बहुत इजी सा है, नंबर फैमिली है, एक छोटा सा परिवार है जिसको हमें समझना है। आज अगर इसको अच्छे से समझ जाते हो ध्यान से तो कल को हायर स्टडीज़ में किसी भी बड़े टॉपिक में बहुत इजीली चीज़ें ग्रैस्प कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। लाइक आई सेड, वी आर स्टार्टिंग दिस 9th क्लास मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम्स। बच्चों, छोटी क्लासेस में, दूसरी तीसरी क्लास में आप सब लोगों को क्लास टीचर्स ने कई बार कहा होगा कि भाई एक फैमिली चार्ट बना के लेके आओ। तो एक बड़ा सा कोई पेड़ बना के, कोई हट बना के, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बना करके आप लोग अपने जो टॉप ऑफ द फैमिली हैं, ग्रैंड फादर, हिज वाइफ, योर ग्रैंड मदर, एंड देन देयर सन्स एंड डॉटर्स, एंड देन योर फादर, देन हिज वाइफ, योर मदर, then you people, you brothers, sisters, this is a family. Same way there is a number family, that is what we are starting in this chapter 1, and this number family basically is called number system. इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें हमने टॉप पर रखा है जो सबसे सीनियर डेजिग्नेशन हैं घर की, जो सबसे बिगर पार्ट है, मेजर पार्ट है। बट अब जब मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर जब नंबर फैमिली के पार्ट्स पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा समझिएगा कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट इन द स्टार्टिंग एंड देन वी विल गो ऑन टू द मेजर एंड देन अनदर मेजर पार्ट। लेट्स स्टार्ट इट। लाइक नंबर 1, इट्स नेचुरल नंबर्स। Natural numbers. I hope natural numbers, everybody must be aware of natural numbers. I think in class 7th it is introduced to all, and they are very simple numbers which you have studied. They start from 1, like 1, 2, 3, 4 and go up to infinite, that is endless. This family starting from 1 to infinite comes in natural numbers. The short form is n, that is natural numbers may also be denoted by n in your further studies. So don't get confused if you hear this n. Second number, whole numbers. Whole numbers is also nothing so new for you people. It's denoted by W. You can check it in your NCERT or other reference books. Whole numbers is nothing much different. It includes an extra member in its family, that is 0, then 1, 2, 3, 4 and so on up to the infinite. So you can say whole numbers are greater than natural number by just one member, and that is 0. I hope you people are clear up to this part. Then third comes integers. Integers I hope is a new term for you people. Integers is denoted by Z. Basically integers consist of natural numbers as well as 0, like whole numbers, and negative numbers. So it starts from minus infinite, like minus 1000, minus 100, minus 99, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, then 0, then positive, like natural numbers 1, 2, 3 and so on to infinite. I again repeat integers for you. Integers has this 0 which is called neutral integer, as it is neither negative nor positive. Integers has positive numbers 1, 2, 3 up to infinite, and integers have negative numbers minus 1, minus 2, minus 3, like it is decreasing this way. This whole number system, integers is decreasing this way and increasing left to right. So let me rub this for you as it is full now. तो बॉयज़, एक हमने सुनी होगी नंबर लाइन, अगर नहीं भी सुनी है तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। नंबर लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. Basically in the center of it is 0, that is first member of whole numbers, as we can say, as well as neutral member of integers. Then at a regular interval on the right side are positive numbers, which can also be termed as natural numbers, like 1, 2, 3, 4,
5, so on. Endless is this number line. You cannot end it neither on this side nor on this side. It goes up to plus infinite here, and same way at the regular intervals. Negative integers on left side, and so on endlessly going up to negative infinite. So I think we don't need to repeat it. This 1 to infinite natural numbers denoted by n, 0 to infinite all positive numbers denoted by whole numbers w, and minus infinite to infinite, this all on this number line as it can be shown are integers denoted by z. Now let's move to another member of this number family. There these two terms are there, like rational numbers and irrational numbers. I will request to you all kids कि यहाँ तक सब कुछ बड़ा सिंपल सा था. इस रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जानी है. कई बार, सॉरी टू से, कई बार मतलब आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, but sometimes even teachers also get confused while trying to make understand the kids about rational and irrational numbers. I will therefore request again before starting this topic, rational numbers and irrational numbers बड़ा बारीक बारीक सा डिफरेंस है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से कान खोल के बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना. अगर कोई गाने वाने कुछ आसपास चल रहे हो तो बंद कर दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा. रेशनल नंबर्स, all the rational numbers, the collection of whole rational numbers is denoted by that family Q, but one rational number as in itself is like called small r. Rational numbers are the numbers in the form of P upon Q, where Q should not be equal to 0. Again I repeat this, rational numbers are the numbers in form of P upon Q, where Q, that is denominator, should not be equal to 0. Let me tell you about these rational numbers bit in detail. Like example 1 by 2. 1 numerator P, 2 denominator Q not equal to 0, satisfying our condition for being the rational number. Now rational numbers are also of 2-3 types. Let me explain you in detail. 1 by 2, if we simply divide 1 by 2, like 2 in denominator is the divisor, 1 dividend, decimal carrying 0, simple mathematics, 2 5 ja 10, denominator is 0. So this rational number where we get denominator as 0, that rational number is called terminating rational number. Terminating rational number. Another type of rational number, like let's have an example 10 by 3. 10 by 3, again you can see 10 as P, 3 as Q in denominator, and denominator is not equal to 0, again satisfying our sorry, definition for rational number, all conditions. Now let's divide this. 10 numerator as dividend, 3 as divisor, 3 3 ja 9, divide carry 1 decimal 0, again 3 3 ja 9, again you see the denominator is coming 1. Note this, please note this, that once we got denominator as 1, again we are getting it as 1. This is to be taken care of. I will explain later. So again decimal is there, so we can take 1 0. So again 3 3 ja 9. Again we see the denominator is 1. You can see repeating denominator, same denominator is repeating itself, and that's why same value 3 is repeating itself in quotient. So from here we conclude that this will go endlessly same way. You can even try it, simple maths. This type of rational number is called non-terminating. Please excuse me for my writing in advance. Non-terminating, reoccurring. You can also say repeating in simple term, but in mathematics the word is used, the term used is non-terminating reoccurring rational number. Such sort of quotient is also written as 3.3 bar, because after decimal you can see that the same value is repeating itself. So it is understood that
this rational number 10 upon 3 can also be written as 3.3 bar. There are many such examples, one is 14 by 11. If we divide that 14 by 11, that I mean again a rational number 14 by 11. So if we divide this 11, 3. Let me clear it first. So we took decimal, we can do a carry 0 here. 11 2 are 22. 8 again by decimal we can take 1 0. Here you can note this thing that this was 3 and this is 8. It's not repeating itself. So we will go further. 11 7 ja 77. So it comes 3. Now students, you see this, that here this denominator was 3 and after 2 steps again the denominator is repeating itself and that is 3. So because decimal is there, we can take 1 0, simple mathematics. Again 11 2 ja 22. I hope you have caught what I want to say, but how will this go further? Again the denominator is 8. Again you see that 8 was here and 8 is repeating here. So by decimal we take 0, we take 7, 77. Again we get 3 as the remainder, sorry, denominator I was saying wrong, remainder. Remainder again 3. So you see 3, again 3, again 3. So it will go like that only. Like again I can take this 0, again I will write 2, again I will write 22, again 8, 8 repeating every second step, 8 is repeating itself. So again 7 and so on. So you can conclude from here that this 2 7 2 7 2 7 will endlessly repeat itself. This is another example for what? Non-terminating, reoccurring rational number. So again it is a non-terminating, reoccurring rational number. It can be again written as like 14 upon 11 P upon Q is equal to 1.272727 is equal to 1 point, what is repeating itself? 27. So 1.27 bar. Simple. So we studied about 2 types of rational numbers, concluding both. One was where in the form of P upon Q, Q not equal to 0, and if we divide P by Q, the remainder is 0. The rational number is termed as terminating rational number. Another, we gave 2 examples. One was 10 by 3, another is 14 by 11, where we see that another rational number is non-terminating, reoccurring rational number. खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, कोशेंट का एक टाइम पे आकर कोशेंट की टर्म्स अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगी, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा और कोशेंट रिपीट कर रहा है, रीअकरिंग रेशनल नंबर्स. 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट irrational number. I told you rational number we simply denote by R. Irrational number we denote by small s. Irrational number small s. Irrational number, now you will be a bit of surprised when I will talk about irrational number. You will say that what's the difference between rational number and irrational number if you are repeating same definition of irrational number also. But further we will tell you how it's different. Irrational number is also a number in the form of fraction where one is numerator, another is denominator, like P upon Q, where Q is not equal to 0. So you will be a bit confused here that the definition which I have told about rational number and the definition I am telling you about irrational number, this is same, then where is the difference? So let me tell you now the difference. That's why I told you कि बहुत बारीक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में और सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बच्चे जनरली इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, लाइक 22/7. सॉरी, इसको देखेंगे आप शायद कहेंगे कि सर P भी है, Q भी है, Q नॉट इक्वल टू 0 है तो रेशनल नंबर है. क्यों कंफ्यूज कर रहे हो?
कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बच्चे, कन्फ्यूजन के बहुत नज़दीक लाके, जितना नज़दीक कन्फ्यूजन के ले आऊँगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, कि जितना नज़दीक कन्फ्यूजन के आके क्लैरिटी कर जाओगे उतना कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब इस 22/7 को अगर डिवाइड करोगे, कोशिश करते हैं यहीं कुछ करने की, ऐसे ले जाएंगे थोड़ा लंबा इसको हम, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है भाई, इसको क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। 22/7, 7 3 जा 21, ये सब तो नहीं बताने पड़ेंगे ना मुझे टेबल आप लोगों को, ये आप करते रहिएगा बैठ के घर पे। 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 1 लगाया, 0 लिया, 7 1 जा 7, ये मैं पहले लिख गया इसको, सॉरी। 3 पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतारी, 7 4 जा 28, इतने टेबल तो आते ही होंगे भाई। 2 0 उतार लिया, इसको 20 को यहाँ ले लेते हैं अभी हम फिलहाल के लिए, थोड़ा सा समझ लेना भाई बच्चों हैं। 20 और क्वेश्चन हमारे यहाँ चलता जाएगा। 7 2 जा 14, बच गया 6। आप एक चीज़ देखो कि इसमें हम जब नज़र डाल रहे थे तो रिमाइंडर क्या हो रहा था, 3 फिर 8 फिर 3 आ गया था, फिर 8 आ गया था, फिर 3 आ गया था, फिर 8 आ गया था, रिपीट हो रहा था। यहाँ आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ रिपीट आ रहा है। यहाँ 1 आया था, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, है ना। आगे चलते हैं, पॉइंट है, 0 उतार ली, सॉरी ये कौन सा जाएगा इसका, 7 8 जा 56 है भाई। 4 बचा, अभी भी रिपीट नहीं हुआ कहीं भी। 1 2 2 फिर 6, कोई ना कोई सीरीज बन रही, ना कहीं कुछ रिपीट हो रहा। एक नंबर या तो एक नंबर रिपीट होता चला जाता, एक ही रिमाइंडर रिपीट होता चला जाता, सेम न्यूमेरिक, या फिर कोई सीरीज बन जाती 1 3 2 1 3 2, कुछ भी नहीं बन रहा है। और आप इसको कितना ही कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, अपने कैलकुलेटर को लेकर बैठ जाओ, कंप्यूटर को लेकर बैठ जाओ, बेटर है कि अपने हाथ से ट्राई करो, है ना। जितना भी जाओगे आप करते जाओगे। 4 को मैं यहाँ उठा लेता हूँ, जगह की प्रॉब्लम है। 40, 7 5 जा 35, 5, कुछ कहीं एंड नहीं होगा इसका, मैं तो जानता हूँ, मे भी आप लोग भी जानते हो और अब तक तो समझ ही गए होंगे। तो इसका कहीं कोई एंड नहीं होगा। वन थिंग, कोई सीरीज भी रिपीट नहीं कर रही है। आप देखो 1 4 1 4 रिपीट नहीं कर रहा। आप कितना ट्राई कर लो और ले जाओ इसको 100 200 250 300 नंबर्स तक ले जाओ, डिजिट्स तक, ये कहीं भी जो है अब ना तो अपनी कोई सीरीज बना के रिपीट करेगा और ना ये खत्म होगा। दैट इज आई वांट टू एक्सप्लेन। तो अब मैं आपको वहाँ आके बताता हूँ कि एक रेशनल नंबर, अभी तो मैंने हटा दिया यहाँ से, ये आपका रेशनल नंबर ही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर, और एक इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। इर्रेशनल नंबर जो आपका है वो ना ही तो टर्मिनेट होगा, क्या मैं यहाँ लिख पाऊंगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ना ही तो वो टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही वो रीअकरिंग होगा। उसका क्वोशेंट भी रिपीट अपने आप को किसी भी तरीके से नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप समझ जाइए कि वो इर्रेशनल नंबर है। आई थिंक यू गॉट इट बेटर। अब एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद कुछ छोटा मोटा लेफ्ट और राइट हल्का फुल्का और रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बता देते हैं, तो आपका ये नंबर फैमिली का काफ़ी हद तक हमारा कवर हो जाएगा सिस्टम। तो पहले इसको एक बार मिटा देते हैं भाई। तो अगर एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर दें, अभी तक जो जो हमने पढ़ा उसको छोटा छोटा सा अगर हम पकड़ के चल लें, हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ा, उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़ा, जो नेचुरल नंबर्स में एक नंबर एक न्यूमेरिक ज़्यादा था जो 0 थी। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े जिसमें कि हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए थे। फिर हमने रेशनल नंबर्स पढ़े, उसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर्स पढ़े। और ये पूरी जो फैमिली है, दिस होल फैमिली, दिस रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, दिस ऑल, they all together are called real numbers, and these real numbers are all possible on our number line. हमारी नंबर लाइन पर आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, आपके होल नंबर्स भी आते हैं, आपके इंटीजर्स भी आते हैं, वो तो मैं दिखा भी चुका हूँ पीछे। और अगर थोड़ा सा बच्चों, अब आप जब कॉन्सेप्ट समझ गए हो रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स का भी, तो इस चीज़ को भी ध्यान से देखो कि कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखो तो आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स भी कहीं ना कहीं आपके रेशनल नंबर्स की ही एक फैमिली का पार्ट हैं। क्योंकि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स सब कहीं ना कहीं क्या थे, वो थे P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो जो आपका जीरो है उसको हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये अगर कहीं ध्यान से देखो तो आपका रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जो आपका पॉजिटिव नंबर्स, आपके जो नेचुरल नंबर्स भी जिन्हें हम कहते हैं 1 2 3, इनको भी अगर आप इनका डिनोमिनेटर देखो तो हिडन वे में सबका डिनोमिनेटर 1 है। ये सब 1 से डिवाइडेड हैं, अपने आप में कंप्लीट हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 जो है 1 2 2 यानी कि 2 है, तो सो ऑन। सेम वे आपके नेगेटिव नंबर्स का भी इसी तरीके से। ये सब पूरी फैमिली जो है, इनके दो ग्रैंड फादर टाइप मतलब देखा जाए तो वो हमारे रियल नंबर्स हैं, और ऑल रियल नंबर्स हैव अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स ऑन नंबर लाइन, आइदर इट्स नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हल्का सा एक ऐसे पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने अभी एक केस लिया था वेयर वी वर टेकिंग अ रेशनल नंबर 14/11, जिसका आई थिंक क्वोशेंट जो आ रहा था वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग आ रहा था 1.27 बार, दैट इज 1.27 27 27 एंड सो ऑन। अब अगर हमें कोई कहे कि भाई ये जो 1.27 बार है इसको अगर हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, इफ समवन आस्क्स यू सो, तो द सेम कैन बी डन, लाइक इट कैन बी डन इन अ मैनर वेयर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो वैल्यू 1.27 बार है ये वैल्यू है x, लेट x इक्वल टू 1.27 बार। जस्ट मान के चल रहे हैं, इट विल मेक अवर सॉल्यूशन ईजियर, लाइक गोइंग दिस वे, इफ x इज इक्वल्स टू 1.27 बार, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, it will be 100x is equals to 100 into 1.27 bar. Simply 100x is equals to, if we multiply it, like it will be going 127.27 bar. 120, right, 127.27 bar, because 2 digits will come on left side. We can also write it, we can break it like this, 126 plus 1.27 बार। ये हमने किसी रीजन से किया है सॉल्यूशन तक जाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मैंने क्यों ऐसे तोड़ा है 126 प्लस 1.27 बार, ये ऐसे कोई हवाई फायर नहीं हमने की है। इसका रीज़न है स्पेसिफिक रीज़न कि हमने जो सपोज किया था वो x था 1.27 बार, और यही वैल्यू हमने तोड़ के दोबारा से यहाँ रख दी। तो इससे हमारे लिए देखिए सॉल्यूशन कैसे आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तक पहुँचना है तो ये थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर लगानी पड़ी है। 126 प्लस, अब ये 1.27 बार क्या था, x था, तो वी कैन राइट इट 126 प्लस x कमिंग हेयर 100x माइनस x, इस x को अगर हम इधर ले जाएंगे तो प्लस की जगह माइनस दिस साइड। किसी को इसमें कहीं कोई डाउट आए तो वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इज इक्वल्स टू 126, इट विल बी 99x इज इक्वल्स टू 126, x के साथ यहाँ 99 मल्टीप्लाई तो उस साइड जाएगा तो वो इसको डिवाइड करेगा। और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, कुछ काटेंगे, कॉमन डिवीजन करेंगे, तो ये आपका 14/11 आ जाएगा। लाइक 9 11 जा 99 एंड 9 1 जा 9, 36 9 4 जा 36। So this way you can get 1.27 bar to a rational number form of P/Q। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ाई करेंगे। उसमें से एक ये है, एक आपका ये जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ये सब के सब जो हैं दिस ऑल आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स आर हैविंग अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स ऑन दिस नंबर लाइन। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक इरेशनल नंबर है, हमने एक एग्जांपल लिया था, आई थिंक √2 का हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल। हमने √2 का नहीं, √2 का लिया नहीं था, बट चलो एक √2 को ले लेते हैं। √2 वो जो हमने लिया था वो लिया था 22/7 का। अभी हम एक √2 का एग्जांपल ले लेते हैं। √2 भी एक इरेशनल नंबर है, लेट मी टेल यू। वो भी अगर आप उसको ट्राई करेंगे, 2 का रूट निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग ही जाएगा, ठीक है। बट दैट ऑल्सो हैज़ a fixed place for itself on this number line। so strange कि उसकी हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है, एंडलेसली हम जा रहे हैं, हमें उसका कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन नंबर लाइन पे उसके लिए भी एक फिक्स पॉइंट अपना है। और उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको यहाँ ऐसे समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कि जैसे नंबर लाइन पे आप 0 to 1 अगर आप एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इस पे एक परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर बना करके एक सेम मेजरमेंट दैट 0 to 1 इतनी ही मेजरमेंट का एक यहाँ पर करेंगे, तो जो ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल होगा, ये 7th 8th क्लास का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ट्राइंगल अपना बना, इस ट्राइंगल के अंदर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपली दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब बहुत सिंपल सा है, बेस हमारा 1 यूनिट है, 0 to 1 1 स्क्वायर प्लस सेम हमने मेजरमेंट ये ली है, अगेन 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, h इज इक्वल्स टू √2। √2 मैंने बताया इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की √2 की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन ये भी नंबर लाइन पर तो नहीं आई। बहुत सिंपल सा है, एक लास्ट स्टेप है। आप अपना कंपास पेंसिल उठाइए, यहाँ से यहाँ तक मेज़र कीजिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक मेज़र कीजिए, कंपास यहाँ रखिए, पेंसिल यहाँ रखिए, इतना ही खोल करके इसको कंपास को, और एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। जहाँ कहीं भी वो आर्क आएगी, दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट प्लेस फॉर irrational number √2 on the number line. I have just explained this to you because I just told you कि real numbers either rational or irrational or any of these have a fixed place for themselves. I think it's clear to you now. Apart from this, what few other things which I want to tell you about rational numbers, irrational numbers. Like natural numbers, they are unlimited. Like integers, they are unlimited. Same way, rational numbers are also unlimited, and same goes for irrational numbers. बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट बच्चों इनको अगर अच्छे से ध्यान कर लोगे, अपने मगज में डाल लोगे, तो ये बहुत अच्छे से काम आएंगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके लिए आगे की स्टडीज़ के लिए रूट्स बन जाते हैं। और ये रूट कॉन्सेप्ट्स ही अगर आज आप क्लियर कर लोगे, तो बिलीव मी, कहने को 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, बात बड़ी लग सकती है, पर यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर दर चैप्टर आप अगर इतना क्लियर करते चले जाओगे माइंड में, तो यही आपके सिर्फ हायर स्टडीज़ बोले तो 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन तक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बड़े बड़े टेस्ट जो होते हैं, आपके यूपीएससी के टेस्ट तक आप पूछ के देखिए, जिन लोगों ने बड़े बड़े टेस्ट क्लियर किए हैं, उन्होंने फिर से वापस जा कर के यही 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें खोली हैं कि भाई अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो लेट्स गो बैक टू दोज क्लासेस एंड बेस को मजबूत करें। आज इस टाइम आपके पास टाइम है, नहीं तो फिर आपको वो पीछे वापस आना पड़ेगा। अभी से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं बता रहा था कि हर रियल नंबर का इस नंबर लाइन पर एक फिक्स प्लेस है। जैसे नेचुरल नंबर्स अनलिमिटेड हैं, होल नंबर्स अनलिमिटेड हैं, इंटीजर्स अनलिमिटेड हैं, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, सेम ऐसे ही आपके रेशनल नंबर्स भी अनलिमिटेड हैं, और सेम गोज फॉर इरेशनल नंबर्स ऑल्सो। और आप रेशनल नंबर्स के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स अगर आपस में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं, तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ये कुछ बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनी अ टाइम्स टीचर्स स्किप कर जाते हैं। इनको ध्यान रख लोगे, इनकी कुछ नोट्स मेकिंग अपनी बना लोगे, और क्लास पास करने के बाद भी ऐसी कुछ चीज़ों को स्टार लगा के कुछ नोट्स बना करके नहीं फेंकोगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आगे बड़े बड़े एग्जाम्स में। अब आती है बात इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स अगर रेशनल नंबर्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लाइक इरेशनल नंबर्स इफ गेट एडेड टू rational numbers or subtracted to or multiplied or divided by rational number, then result will always be irrational number, that is S। ये ध्यान रहे, ये एक और चीज़ नोट कर लीजिए, इस पे भी मैं स्टार लगा देता हूँ। अब इसके बाद एक जो आता है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स अगर इरेशनल नंबर्स के ही कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आइदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, तो आंसर इरेशनल नंबर भी हो सकता है और आंसर रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये एक और बड़ा बेसिक सा आपका है, इसको भी आप स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक इरेशनल नंबर अभी हमने √2 ही उठाया हुआ था, इसी का ही जिक्र चल रहा था। तो √2 को अगर आप इंटू √2 यानी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल करोगे, तो √2 का स्क्वायर
तो वो हो जाएगा आपका 2, और 2 जो आंसर आया वो आपका इरेशनल नहीं है, वो आपका रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे, हो सकता है कोई बच्चा कहे कि भाई सर 2 तो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर मैं उस बच्चे को यही कहूँगा कि उसने मेरी क्लास में ध्यान से पीछे से नहीं सुना है। मैंने आपको कहा था कि एक टाइम पर आकर के कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स भी अगर ध्यान से देखा जाए, यहीं कहीं बताया था, ये देखो ये लिखा भी हुआ है कि अगर इनके नीचे देखा जाए तो एक डिनोमिनेटर है और वो 1 है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ देखा जाए तो सब रेशनल नंबर्स ही। तो ये जो 2 है, ये 2/1 ये आपका रेशनल नंबर निकल गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो इरेशनल नंबर्स जब इरेशनल नंबर के कांटेक्ट में आएंगे आइदर थ्रू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो आंसर कैन बी इरेशनल एज वेल एज आंसर कैन बी रेशनल। बट अगर रेशनल नंबर रेशनल के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑलवेज आंसर विल बी रेशनल, और इरेशनल अगर रेशनल के कांटेक्ट में आते हैं इन मीडियम्स के थ्रू तो आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। प्लीज ये तीनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। इनके अगेंस्ट अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में वैसे पूछ सकते हैं। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो इसका तो रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इसके अंदर क्या होता है ना, जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको कई बार सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमें, ताकि अपना जो सॉल्यूशन है वहाँ तक हम पहुँच सके। जैसे उसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि खासकर मैं बता देता हूँ बच्चों, खासकर डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो वो हमारे लिए आगे चल के आगे की स्टडीज़ में वो हमारे लिए किसी भी क्वेरी को सॉल्यूशन तक ले जाने में बड़ी दिक्कत करता है। तो उसके लिए बड़े सिंपल से कुछ प्रोसेस होते हैं। लाइक जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अभी बड़ा सिंपल सा 3/√2। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुल मिला के एक इरेशनल नंबर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो रेशनल है, न्यूमरेटर में तो यहाँ रेशनल है, लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। अब मैंने आपको बताया ही था कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर आपस में कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या कुछ भी, तो ओवरऑल वो इरेशनल है। तो इसकी इरेशनलिटी तो हम खत्म नहीं कर सकते, बट इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनल बना करके इसको थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। इसका बड़ा छोटा सा कुछ ऐसे समझ लो देशी भाषा में, जैसे एक गाड़ी को जो है एक आगे फॉरवर्ड चलाना इजी है, रिवर्स में चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम जितना हो सकते हैं ये कोशिश करते हैं कि रिवर्स चलाने से हम बचते हैं। ऐसे ही इसको समझो कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आगे चल के हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। तो ऐसे में हम डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। उसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, आप उस पूरे नंबर को, पूरे P/Q को आप उस ही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्योंकि अगर आप सेम वैल्यू ऊपर और नीचे रख रहे हो तो आप कुछ नंबर के साथ छेड़छाड़ तो कर नहीं रहे हो, ये आपस में कैंसिल होके तो 1 1 है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। तो √2/√2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका आ गया 3√2 और नीचे आपका आ गया 2। तो आप अगर ध्यान से देखो तो हमने इसको बस क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। लाइक 3/2 को अगर हम ध्यान से देखें तो 1.5 भी लिख सकते हैं √2। गॉट द पॉइंट? एक और कोई छोटा एग्जाम्पल कोई और ले देते हैं, इससे हल्का सा एक नेक्स्ट स्टेप, लाइक 1/5 माइनस √3। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 + √3 डिवाइडेड बाय 5 + √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही बात आ गई कि वी आर नॉट डूइंग एनी इम्बैलेंस टू द नंबर, सेम वैल्यू इज अप, सेम इज डाउन। इफ़ वी मल्टीप्लाई तो ये तो सिंपल सा आ गया आपका 5 + √3, और नीचे जो आपका आ गया 5 - √3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये आप अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना। बट ये आपका आ जाएगा 5 + √3 ऊपर, और नीचे आपका आ जाएगा 25 - 3। आप करके देखिएगा इसको मल्टीप्लाई, यही आएगा। तो ये आपका 5 + √3 डिवाइडेड बाय 22। इस तरीके से आपने एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर को, जहाँ डिनोमिनेटर जो था वो इतना एक हैवी सा इरेशनल नंबर था, उसको आपने ईजी कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बाकी इसके आगे अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहीं रुक के पहले। 9th क्लास स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर की जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक बताए हैं, इसमें आपकी NCERT की पहली 3 एक्सरसाइजेज कवर हो जाती हैं। आप इन 3 एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद।
कुछ हल्का फुल्का मैं अभी डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मज़ा इसी चीज़ में है कि अगर मैं आपको इतना डिटेल में सब बता चुका हूँ तो उसके बाद एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में हो जानी चाहिए। एंड नॉट ओनली एनसीईआरटी, आई विल से वट एवर एनी अदर XYZ रेफरेंस बुक्स यू हैव, एनी बुक, एवरी बुक यू हैव, उसका आप इससे रिलेटेड ईजी, डिफ़िकल्ट, ट्रिकी ऑल क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, सब में घुस जाइए। पूरा करने के बाद जहाँ जहाँ आपको डाउट आता है वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लीजिए। इसको मैं मिटा करके अब आपको कुछ फॉर्मूलाज इस पे लिख देता हूँ, जो आपका एक्सरसाइज 1.4 जो एक लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की है, बड़ी सिंपल सी है, तो उन फॉर्मूलाज के साथ ही मैं आपसे मिलता हूँ। अभी इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 9th क्लास के रियल नंबर से रिलेटेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के कुछ फॉर्मूला हैं। इनको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा लॉजिकली समझ लोगे तो बाय हार्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। लॉजिक का कुछ बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर रूट ए बी है तो वो रूट ए इंटू रूट बी लिखा जा सकता है। सिंपल सा फोकस इस पे करो कि पावर अगर दोनों की सेम है, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, दो से अगर ज़्यादा भी हैं, मैं कहता हूँ रूट ए बी सी डी भी है, तो आप रूट ए इंटू रूट बी रूट सी रूट डी इंटू इंटू करके आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। ये ऐसा कुछ आपका जो है इससे मैच करता हुआ ये आपका एक फॉर्मूला भी है। आप इसको देख सकते हो कि सिर्फ वो स्क्वायर रूट पे ही अप्लाई नहीं करता, वो किसी भी पावर पे अप्लाई करता है। अगर आपके एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं या एक से ज़्यादा अलग अलग वैल्यूज़ हैं और उनकी सबकी पावर सेम हैं, तो आप उन सब को एक कॉमन दायरे में लेकर के, यानी आप उसमें मल्टीप्लाई करके होल रेज टू पावर दैट वैल्यू भी कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ये अगर आप देखो तो सेम इसके जैसा जा रहा है। इसी तरीके से आप रूट ए अपॉन बी को रूट ए अपॉन रूट बी भी लिख सकते हो। अब आता है अगला, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये आपका बड़ा सिंपल सा है, वही जो मैंने अभी लास्ट में यहाँ नीचे एक जब रेशनलाइज किया था तो वो मल्टीप्लाई किया था 25 माइनस 3 22 जो आया था, ये कुछ ऐसा ही है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉल्व करोगे, ये कुछ भी, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मैथ्स और साइंस में कुछ भी लॉजिक और फैक्ट्स से बाहर नहीं होता है बच्चों। हर फॉर्मूला, हर स्टेटमेंट का एक बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद एक कंक्लूजन निकलता है और वो फिर बुक्स के अंदर पब्लिश करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे यही देख लो, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई कहाँ से आ गया रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, कहाँ से आ गया? अरे भाई इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रूट ए इंटू रूट ए का होल स्क्वायर, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा ए, फिर रूट ए इंटू माइनस रूट बी, तो माइनस रूट ए रूट बी बन गया। अब इससे इसको दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। प्लस रूट बी इंटू माइनस रूट बी, माइनस लिख के रूट बी का होल स्क्वायर डी आ गया। इस तरीके से रूट ए रूट बी आपस में कैंसिल हो गया और सॉल्यूशन आपका जो बच गया वो ए माइनस बी बच गया, और वही आपका देखो यहाँ आ गया, हेंस प्रूव। तो इसी तरीके से जितने भी फॉर्मूलाए हैं ये आप मल्टीप्लाई करके इसको सेम ऐसे इसको रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर को भी अगर आप खोलोगे तो आप देखोगे उसमें एक ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा, और आपका एक प्लस रूट ए बी और प्लस रूट ए बी आएगा, तो वो प्लस 2 रूट ए बी बन जाएगा। कोई डाउट हो तो मेरे साथ पूछ लेना। इसी की तरह सिंपल सोल्यूशन करके ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। अब कुछ यही सेम चीज़ें इसमें हैं। अगर आप सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर्स अलग हैं, तो बहुत ईजी है, उस वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर दो। फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज़ विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट एनी लॉजिक आपको नहीं बताई जा रही है। हर चीज़ के पीछे एक रीजन है, करके देखना है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत छोटा सा कुछ कर लो, ज़्यादा बड़े पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2 की पावर 3 ले लो, फिर ए यानी सेम आपका यहाँ होना चाहिए 2 की पावर 4 ले लो। अब आपका 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। सॉल्व भी करोगे, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। आई डोंट थिंक कि सबको अलग अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत होनी चाहिए 9वीं क्लास में आपको, अगर होती तो मैं ज़रूर कर देता। डाउट हो एक्सपेरिमेंट करो, चेक करो, डाउट हो मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजो कि सर इस वाले में मैंने ये ऐसे ट्राई किया लेकिन मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, आई विल हेल्प यू आउट। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम्स ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट,
पूरा बता दिया है। कहीं कुछ आपको लगता है कि कोई टॉपिक किसी कॉर्नर में आप और समझना चाहते हो इससे रिलेटेड, अगेन आस्क मी इन कमेंट। फ्रॉम माई साइड आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। देर आर 4 और 5 एक्सरसाइजेज एज आई टोल्ड यू। मैं एक बार बुक में से कुछ एक आध कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें से, और बाकी की सारी चीज़ें, सारी एक्सरसाइज आप कीजिएगा। एक बार इसको मिटाना पड़ेगा जो है। एक्सरसाइज 1.1 इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, मैं अभी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ बच्चों। इज जीरो आर रेशनल नंबर? भाई बताओ, आप ही खुद सोचो। इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के बाद मुझे तो लगता नहीं मुझे बताने की जरूरत है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जीरो है, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, देन ऑल्सो इट विल बी जीरो। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ रेशनल नंबर। 1 है वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि जो P/Q है, जहाँ आपका Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो वो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 इन इटसेल्फ, रिमाइंडर इज ऑल्सो 0। सो ऑब्वियसली सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार भी है, क्रिएटिव भी है अपने आप में। 6 रेशनल नंबर्स बताइए बिटवीन 3 and 4। तो नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे आपका 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, फिर एक 3 आता है, फिर एक 4 आता है। तो कैसे इसके बीच के आप कितने ये मांग रहा है? 6 मांग रहा है, लेकिन मैंने आपने के बाद में, लेकिन 3 और 4 के बीच में 6 ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी बताए जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर एक रेशनल नंबर पूछा गया होता तो हम सीधा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करते 7/2, और आपका एक रेशनल नंबर ये आ जाता 3.5, जो आपका यहाँ कहीं इसमें आ जाता 7/2 P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पूछे गए हैं 6, तो आपको इसका थोड़ा सा हॉरिजॉन जो है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 3 × 7/7 कर दीजिए, और एक और नंबर जो है वो 4 है, तो 4 × 7/7 कर दीजिए। तो कोई नंबर के साथ छेड़छाड़ तो हमारी हो नहीं रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 21/7 बन गया, और जो 4 है वो 28/7 बन गया। अब इसके बीच के जो है हम देखिए 22/7, ये भी आपका एक नंबर हो गया P/Q। 23/7, 24/7, और इसी तरीके से अगर आप इसका और ज़्यादा पूछे जाते तो आप इसको 9 करके और ज़्यादा बड़ा नंबर बना सकते थे। तो ये 4 9 36 डिवाइडेड बाई 9, और ये 3 9 27 डिवाइडेड बाई 9। तो पैरामीटर आपका और ज़्यादा लंबा हो जाता, और ज़्यादा नंबर्स इनके बीच में आप निकाल सकते थे। इस तरीके से सेम रिपीटेड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उसको कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तर्क है। अगर आपने सारा डिटेल में मेरा अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। खुद कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 है, अगेन इसमें भी तर्क हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे हैं तो आप इसमें ट्रू फॉल्स अच्छे से बता सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं। और अगर आपका ध्यान इधर उधर रहा है समझने में, तो आप उसको रिपीट करके फिर से एक बार मेरे लेक्चर को सुनिए, तो फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 के अंदर अगेन वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको सारी बताई हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप अपने आप कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, सेम। 3 भी मैंने आपको बताया है, एक एग्जांपल भी करके दिखाया। 3 4 ये सब आपका ऐसा कैसा हो जाएगा। ऑल दीज क्वेश्चंस ऑल आर ऑन द कॉन्सेप्ट्स आई हैव नरेटेड यू वेरी वेल, दैट टू विद एग्जांपल्स। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन कमेंट्स। देन कम्स exercise 1.4, classify rational or irrational. So very easy to find out. Everything has been explained to you by me. Hopefully it will be easy for you if you have listened to me carefully. Question number 2 again very simple, मज़ेदार क्वेश्चन है। कुछ जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखे थे उन्हीं पे बेस्ड है, सब सिंपल है। मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखिए। बी अटेंटिव while multiplying because many a times silly mistakes which kids do is they ignore this plus into minus or minus into minus। सारी क्लियर कॉन्सेप्ट्स, सारी की हुई मेहनत सब खराब हो जाती है बच्चों जब आखिर में आंसर गलत हो जाता है छोटा सा प्लस माइनस का ध्यान ना देने से। तो along with the speed also be alert, है ना। स्पीड और अलर्टनेस का एक बैलेंस बना के जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आखिर में आंसर सब ठीक मिलेगा। 100 आउट ऑफ 100 बड़े प्यार से आएगा। ये कीजिए सारी एक्सरसाइज 1.4। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग, अलग से कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 1.5 ऑल्सो द सेम, सारे वही क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूले बताए थे। a raised to power
पी ए रेज टू पावर इंटू ए रेज टू पावर क्यू इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर पी क्यू। उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.5 के भी 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही बड़े सिंपल हैं, कुछ भी ऐसा है नहीं जो अलग से बताना पड़ेगा। क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ लो। एक थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, उस थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, मैं जस्ट करा दे रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। 11 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 रेज टू पावर 1/4। पता नहीं, मैं कराना तो नहीं चाहिए मुझे ये, पर बस शायद इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हें लगे टीचर इतना आलसी है, सारा काम हमसे ही करवा रहा है। तो ये देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो फॉर्मूला लगेगा, आप ध्यान से देखो, आपका न्यूमरेटर का जो वेरिएबल है और डिनोमिनेटर का जो है जो वैल्यू है, वेरिएबल कहना गलत हो जाएगा, फॉर्मूला वाइज वो वेरिएबल पे चली जाती है बात। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों की जो पावर्स हैं, क्योंकि ये बीच में डिवीजन आता है, तो जो न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, इसका फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। तो हम इसको 11 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, और फिर इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करने चले तो ये 11 रेज टू पावर एलसीएम वो सिंपल सा है आपका 2 माइनस 1 एंड दैट विल बी 11 रेज टू पावर 1/4। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस अलग से नहीं है। सो फाइनली चिल्ड्रन, 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, मेरी साइड से ये कॉन्सेप्चुअल वाइज और एक्सरसाइज वाइज फिनिश्ड है। और लास्ट में फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट में डाउट आता है या फिर कहीं कोई एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चंस करते हुए कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क इट इन कमेंट। एंड नॉट ओनली एनसीईआरटी, आई विल से जो भी बुक्स लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी आपको मिलती हैं अपने पास, दोस्तों के पास, लो और पूरे चैप्टर को ग्रिल कर दो। कहीं भी कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन कुछ भी छूटे ना। जितना अच्छे से एक एक चैप्टर को जो है ना, मतलब पीसते चले जाओगे और बार बार क्वेश्चन को करते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, तो वो तुम्हारे माइंड में कहीं सेट बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।